Hello everyone, welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. In previous lecture we have completed our unit number 3. Okay, the last part which we have studied in previous lecture is critical flow. Okay, so we have studied about the critical flow, okay, analysis of critical flow and one numerical on the basis of critical flow. We have seen three types of numericals, okay, on the basis of critical flow. So unit 3 was completed in previous lecture. So today we will move to the next unit, that is unit number 4. Okay, unit number 4. Unit number 3 was based on uniform flow. Okay, unit number 3 was based on uniform flow. So the unit number 4 is totally based on non-uniform flow. Okay, unit number 4 is non-uniform flow. At the beginning of the unit number 3 we have seen what is uniform and non-uniform flow. We will again read it today. So uniform and non-uniform flow, you have to first differentiate between these two important flows. Okay, so first let's see, that is your unit number 4, that is non-uniform flow. Okay, non-uniform flow has two types, GVF and RVF. Okay, GVF means gradually varied flow. Okay, shortcut I have just written it in a shortcut manner. GVF is gradually varied flow and RVF is rapidly varied flow. Okay, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के दो टाइप होते हैं, जीवीएफ यानी कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और आरवीएफ यानी कि रैपिडली वेरिड फ्लो. ठीक है ना. जब हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किए थे तो पूरे फ्लोज अलग अलग टाइप के जो फ्लो थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्लोज है, उन सबका इंट्रोडक्शन हमने देख चुके थे. ठीक है, फिर भी आज हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर से देख लेंगे एक बार. तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हमको पढ़ना है कि जब फ्लो यूनिफॉर्म ना हो. सबसे पहले आप देखते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है. ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? For a given length of channel, if the depth, velocity and rate of flow remains constant, then the flow is said to be uniform flow. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा मैं आपको सिंपल बताता हूँ. जैसे कि एक प्लान ले लेते हैं हम और ये एक चैनल का सेक्शन है. ठीक है, ये एक चैनल का सेक्शन है और इसमें हमने ये एक सेक्शन मार्क किए, फिर इसके बीच में एक सेक्शन मार्क कर दिए, फिर इसके इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है ना, ये कुछ सपोज 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ अज्यूम कीजिए कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. फ्लो जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, अभी एक चैनल है और ये हम चैनल को अज्यूम कीजिए कि हम टॉप से देख रहे हैं इसको. ठीक है ना, तो ये प्लान दिख रहा है चैनल का. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है ना. Let's assume this is a channel top. Okay, we have just imagine that you have seen this, you are seeing this channel from the top. Okay, so it's a top view like a plan. So we have divided this channel into three parts. This is the section 1, section 2 and section 3. Okay, now if you see uniform flow, okay, for a given length, for example from this to this and this to this. Okay, for a given length, assume length like okay, this length, okay, this length and this length. For any given length of channel, if the depth of if the depth of flow, velocity and rate of flow. Okay, suppose the depth of flow, and what is depth of flow? This is the channel section. Okay, if you cut the section from anywhere, you will see the cross section like this. Okay, so this is the depth of flow. What is depth of flow? Depth of flow is this. Okay, so this is the depth of flow. Okay, so if the depth of flow, velocity of flow throughout this channel and rate of flow, okay, rate of flow means discharge, remains constant. Okay, discharge remains constant, it means discharge, depth of flow and velocity is not changing with respect to any section or with respect to time or anything. It is not changing with respect to space, then it means the flow is uniform. ठीक है, मतलब समझे आप. जैसे कि हमने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिए, तो अगर फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है या पूरा थ्रू आउट चल रहा है, कोई भी एक सेक्शन, कोई भी एक लेंथ तक के, कोई भी एक स्पेस तक के,
हम अज्यूम करते हैं कि थ्रू आउट द स्पेस। सो अगर ये फ्लो स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो डेप्थ है फ्लो की ये कम ज़्यादा नहीं हो रही, जैसे कि इसकी डेप्थ ऑफ सपोज 1.2 मीटर, तो इसकी डेप्थ चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट, ये पूरा कंटिन्यूस 1.2 मीटर पे चल रहा है। उसके अलावा अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो पूरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड पर ही चलेगी। फिर उसके अलावा अगर डिस्चार्ज सपोज 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो थ्रू आउट 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड चलेगा डिस्चार्ज। यानी कि ना तो डिस्चार्ज चेंज होगा, ना डेप्थ चेंज होगी, ना इसका वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, इस फ्लो को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, यानी कि सिमिलर, यानी कि नॉट चेंजिंग, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है ना सिमिलर, है ना। सो इस तरीके से फ्लो को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है ना। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल वाई बाय डेल एस। ये डेल एस का मतलब होता है स्पेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, है ना। स्पेस का मीनिंग यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ से हो रहा है। सो जब डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नॉट चेंजिंग मीन्स ये जीरो आना चाहिए। अगर इसका चेंज नहीं हो रहा है यानी कि सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो आएगा, है ना। सिमिलरली वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो भी चेंज नहीं हो रही, मतलब जीरो। और जो रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज है इट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इट मीन्स वी कैन राइट इट एज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म समझ गए। अब चलो देखो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पे आते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि हम यूनिट नंबर 4 इज टोटली बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहाँ पे देखो जो यूनिफॉर्म फ्लो है उसका जस्ट अपोजिट होगा, ये तो हमको समझ में आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ चैनल इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो डू नॉट रिमेन, ठीक है ना, दिस वर्ड शुड बी अंडरलाइन, नॉट रिमेन, ठीक है ना, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, द फ्लो इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसका जस्ट अपोजिट हो गया यूनिफॉर्म का, यानी कि इसमें क्या हो रहा था कि वेलोसिटी जो डेप्थ है फ्लो की वो चेंज नहीं हो रही थी, रेट ऑफ फ्लो चेंज नहीं हो रहा था, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी यूनिफॉर्म में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, तीनों ही चीज़ें चेंज हो सकती है, ठीक है ना। जो डेप्थ है फॉर एग्जांपल अगर इस सपोज इस सेक्शन पे जो डेप्थ है वो सपोज 2 मीटर है, तो इस सेक्शन पे डेप्थ 1.5 मीटर हो रही है, फिर इस सेक्शन पे डेप्थ उससे कम हो रही है या बीच में भी कम हो सकती है, डेप्थ कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि हम ग्राफ एक देखेंगे डेप्थ का, एक मैं आपको एक बेसिक एक ग्राफ जैसे बना के दिखाऊँ। सपोज ये एक चैनल का बेस हो गया, अज्यूम कीजिए चैनल का बेस हो गया, हम ये इसकी जस्ट नीचे भी बना सकते हैं। तो एक चैनल का बेस हो गया, तो सबसे पहले डेप्थ उसकी 1.2 थी, थोड़ा आगे जाने के बाद 0.5 हो रही है, इस तरीके से वेविंग फॉर्म में इस तरीके से डेप्थ कम ज़्यादा डेप्थ हो रही है ना। इस तरीके से वाटर की जो डेप्थ है वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और सिमिलरली इसमें क्या हो रहा था, इस जैसे कि एक सेक्शन हमने मार किया तो जो डेप्थ है कुछ भी चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, वाटर की जो डेप्थ है बिल्कुल सेम थी विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर लेंथ। लेकिन सपोज इतनी लेंथ में इसकी जो डेप्थ है वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। इस तरह के फ्लो को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब एक चीज़ इमेजिन कीजिए, अगर इसकी डेप्थ कम ज़्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि अगर आपको याद हो Q इज इक्वल टू, है ना, Q इज इक्वल टू एरिया एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। इसका डिस्चार्ज भी कम ज़्यादा होगा और वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया से रिलेट करता है। और एरिया मतलब क्या होता है, एरिया का मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, बी, यानी कि विड्थ ऑफ चैनल मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई और मल्टीप्लाइड बाय बी, इस तरीके से हो रहा है ना। तो ये जो वाई है ये हमारे लिए, इसको हमको देखना, क्योंकि अगर वाई चेंज हो रहा है, if the depth is changing it means discharge is also changing and velocity is also changing, so बाकी चीज़ें automatically change हो जाएगी। so depth, if depth not remain constant, if depth is not remaining constant it means the discharge and it will affect the discharge and also the velocity, so both these things cannot be remain constant if the depth is not constant। so नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है फिर कि कोई भी एक लेंथ के लिए चैनल की जो डेप्थ है, वेलोसिटी है और रेट ऑफ फ्लो है वो सेम नहीं होता है, चेंज डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह के फ्लो को नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। डेप्थ इस तरीके से होती है और हमको पता है कि क्यू का फॉर्मूला ए इंटू बी है, एरिया का मतलब विड्थ इंटू डेप्थ,
सो डेप्थ चेंज हो रही है मतलब डिस्चार्ज भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, सिंपल। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो था। आगे इसका जैसे कि हम देखेंगे कोई एग्जांपल के तौर पे, इसके हम पूरे एग्जांपल्स और इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने लिखे थे डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस 0, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वाई इज चेंजिंग, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 का। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये भी चेंज हो रही है। Discharge with respect to space is not zero, it means it is also changing. So these things, it's a sign that the things are not remaining constant, it is changing with respect to space। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है विद नॉट इक्वल टू 0 का, ये आपको पता ही है। आफ्टर दैट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरीड फ्लो, वेरिएशन ऑफ फ्लो, नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, वेरिड फ्लो मतलब वेरिएशन ऑफ फ्लो, ये वेरिड लिखा है, थोड़ा सा नीटनेस का प्रॉब्लम है इसमें। वेरिड फ्लो यानी कि वेरिएशन हो रहा है जिसमें। ठीक है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। देखिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ लिखे, एक जीवीएफ एक आरवीएफ, इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं। देखो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, पहला होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, दूसरा होता है रैपिडली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मतलब जो ग्रेजुअली वेरी हो रहा है, कम ज्यादा, ऐसा नहीं कि सडनली एक शॉर्ट लेंथ पे कम ज्यादा हो रहा है। फ्लो अगर बहुत ज्यादा लेंथ पे ग्रेजुअली धीरे 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 वेरिएशन हो रहा है, डेप्थ धीरे 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 कम हो रही है, तो उसको ग्रेजुअली वेरिड बोलेंगे। रैपिड में क्या होगा, रैपिडली डेप्थ कम ज्यादा होगी। इसका एग्जांपल भी देखेंगे अभी हम। सबसे पहले देखते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है। देखो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, if the depth of flow changes gradually over a long length of channel is called as gradually varied flow। सिंपल इसका मीनिंग देखो, अगर डेप्थ जो है फ्लो की वो चेंज हो रही है ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग लेंथ, दिस लाइन दिस वर्ड शुड बी अंडरलाइन, लॉन्ग लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग लेंथ पे अगर वो ग्रेजुअली वेरी हो रही है, डेप्थ क्या चीज वेरी हो रही है, डेप्थ ऑफ फ्लो, है ना, पानी की जो डेप्थ है, वाटर की जो डेप्थ है चैनल में, वो क्या है, बहुत ही ग्रेजुअली लॉन्ग लेंथ पे वेरी हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा हम जीवीएफ बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल हम इसके पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि ये सपोज एक डैम हो गया, ठीक है ना, ये एक डैम का पार्ट है। डैम के पीछे आप देखोगे ये जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, तो वाटर का जो टॉप होता है वो ऊपर होता है, फिर थ्रू आउट बहुत लॉन्ग, ये जो डिस्टेंस होता है ना किलोमीटर्स में होता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जैसे कि Y2 एक डेप्थ हो गई, ये जस्ट डैम के पीछे जो डेप्थ है, आप देखोगे कि कहीं पर भी कोई भी डैम के पीछे देख लोगे तो उसका जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही धीरे 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 से कम होता है, इसको हम Y1 बोल रहे हैं। ठीक है, ये डेप्थ Y1 है और ये डेप्थ Y2 है, यानी कि पीछे से देखोगे तो ये इस तरीके से इंक्रीज होती है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ी लेंथ है, ये जो लेंथ होती है ना ये किलोमीटर्स में होती है लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ है ये किलोमीटर्स में होती है लेंथ, ऐसा नहीं कि बहुत आपको ऐसा लगेगा कि शॉर्ट लेंथ है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में होती है लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ है ये किलोमीटर्स में होती है। ठीक है, दिस लेंथ इज इन किलोमीटर्स, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शॉर्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किलोमीटर्स में लेंथ होती है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी लेंथ रहेगी, बहुत लॉन्ग लेंथ रहेगी, तो उसमें धीरे धीरे से जो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो ग्रेजुअल होगा, है ना, ग्रेजुअली होगा, सडन नहीं होगा। आप बोलोगे सडन मतलब ये एकदम से इस तरीके से वेव नहीं बन जाएगी, इस तरीके, ऐसा नहीं होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इसलिए हम इसको ग्रेजुअली वेरी फ्लो। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है, फ्लो ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ वियर या डैम, किसी के भी अपस्ट्रीम साइड पे। ये डाउनस्ट्रीम साइड होता है जहाँ पे वाटर डिस्चार्ज होता है, और अपस्ट्रीम साइड वो होता है जहाँ पे वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो अपस्ट्रीम साइड पे फॉर्म होता है वियर या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इतना समझ गया। चलो नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट इज रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो क्या होता है, ये हम बार बार इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। रैपिडली वेरिड फ्लो,
इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस एब्रप्टली, ठीक है ना, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो एकदम सडनली चेंज हो जाए ओवर अ स्मॉल लेंथ, ये भी लाइन को आप इस वर्ड को भी अंडरलाइन करते हैं, वहाँ पे लॉन्ग लेंथ था, ऊपर लॉन्ग लेंथ था तो यहाँ पे स्मॉल लेंथ है, यानी कि बहुत स्मॉल लेंथ में चेंज हो जाए डेप्थ, जो वाटर की डेप्थ है वो कम ज़्यादा हो जाए, इस तरह के फ्लो को बोलते हैं रैपिडली वेरी फ्लो। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना, ग्रेजुअली जिसमें वेरी हो रहा है और एक रैपिडली वेरी तो हो रहा है, बट ग्रेजुअली वेरी फ्लो में ग्रेजुअली सडनली नहीं हो रहा है वेरी, धीरे धीरे वेरी हो रहा है लेंथ के हिसाब से, और रैपिडली वेरी फ्लो में एकदम सडनली कम ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक जंप, जैसे कि ये इमेज थोड़ा आप देखोगे, इस इमेज में अगर आप देखोगे ये एक डैम हो गया, जैसे कि ये डैम के जो नीचे होता है एक स्पिलवे होता है जिसमें पानी डिस्चार्ज करते हैं, वाटर जो डिस्चार्ज होता है ना वो इस तरीके से एक स्लोपिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको स्पिलवे बोलते हैं। तो इस स्पिलवे के ऊपर से जब पानी गिरता है सडनली एक जंप लेता है ना, यहाँ पे तो ये इस साइड में तो ये अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, लेकिन इसके डाउनस्ट्रीम साइड में आपको हमेशा रैपिडली वेरिड फ्लो देखने को मिलेगा। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि स्पिलवे, स्पिलवे के ऊपर से वाटर एक डेप्थ के ऊपर से आता है पर्टिकुलर डेप्थ पे, ये सडनली इस तरीके से फॉल होता है और एक सडन जंप होता है उसमें, तो जो एक डेप्थ मिलती है स्टार्टिंग में जो इनिशियली जंप लेने के पहले उसको बोलते हैं y1, और जब जंप ले लेता है उसको बोलते हैं y2, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में एक चीज़ देखे थे कि सीक्वेंट डेप्थ और अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है, वो आप फिर से देखना, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा चुका हूँ उसको। सीक्वेंट डेप्थ और अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है, वो रैपिडली वेरिड फ्लो और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, ठीक है। ये जो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 है ये एक एक्सटेंशन है ना, यूनिट नंबर 3 और 4 एक दूसरे से अलग नहीं है, एक कंटिन्यूशन में। तो ये होता है y1, y1 मतलब ये होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो जिसका फ्राउड नंबर 1 से ज़्यादा होता है, और y2 होता है सब क्रिटिकल फ्लो जिसका फ्राउड नंबर 1 से कम होता है। फ्राउड नंबर क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से y1 और y2 एक सडन जंप होता है, बहुत शॉर्ट लेंथ होती है, जैसे कि किलोमीटर्स में है तो ये लेंथ कुछ मीटर्स में होगी बस, ठीक है, कुछ बहुत कम मीटर्स में होगी, 4-5 मीटर समथिंग। तो एकदम सडन जंप हो रहा है एंड इट इज हैपनिंग इन अ वेरी शॉर्ट लेंथ, okay. For example, in gradually varied flow long length was there, okay, but in case of rapidly varied flow it happened in a very abruptly in a very small length. So the best example is hydraulic jump, ठीक है। तो ये हो गया इसका theoretical पार्ट आपके नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम कुछ डेरिवेशंस और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है आपको, दैट इज assumption in gradually varied flow, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। assumption in gradually varied flow, GVF की assumption, ठीक है। GVF का मतलब gradually varied flow होता है, ये आपको पता है, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में ही बात करेंगे। तो इसके कुछ assumptions हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ आपको GVF में एक चीज़ ध्यान रखना है, GVF का मतलब जैसे कि आपको पहले बता दूँ, अभी जो हमने पढ़े लॉन्ग लेंथ पे डेप्थ का कम ज़्यादा होना। तो सोचिए यहाँ पे अगर लॉन्ग लेंथ पे कम हो रहा है तो जो हमको क्या इसका अज्यूम करना है, कब होगा ये, किस केस में होगा, व्हेन द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज स्मॉल। बेड स्लोप आपने देखे ही थे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चैनल का बॉटम हो गया, ठीक है ना, ये चैनल का एक हो गया, और ये जो चैनल का एक बॉटम है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये बहुत ही स्मॉल रहा है, ये जो एंगल है बहुत स्मॉल रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है ना, लेकिन इतना भी नहीं कि वाटर फ्लो ना हो, हमको ग्रेविटी के लिए थोड़ा सा इसको एंगल को रखना पड़ेगा, बट बहुत कम, ठीक है। जब हम एंगल कम रखेंगे तो जो डेप्थ है वो कांस्टेंट रहेगी या थोड़ा सा ग्रेजुअली वेरी होगी। चैनल इज प्रिज्मेटिक, सेकंड क्या है, चैनल प्रिज्मेटिक है, इसका मतलब जो चैनल का सेक्शन है, चैनल में हम ये अज्यूम करते हैं कि एक रेक्टेंगल चैनल, हम देखते हैं कोई भी एक कैनाल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, रेक्टेंगल कैनाल है। चैनल हैज़ अ कांस्टेंट अलाइनमेंट एंड शेप, यानी कि जो अलाइनमेंट है, सेंटर लाइन है वो कांस्टेंट है और शेप चेंज नहीं हो रहा है, ये हमको मान के चलना है, ठीक है। शेप जो है चैनल का वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है वो, ठीक है ना, यह चीज़ हमको अज्यूम करके चलना है। उसके बाद थर्ड अज्यूमशन हम लेंगे कि एक्सीलरेटिंग इफेक्ट इज नेग्लिजिबल एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी वाटर जो है एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, एकदम स्मूथ यूनिफॉर्म फ्लो में चल रहा है, ठीक है ना, मतलब जो वाटर है वो किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेट या कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी करेक्शन फैक्टर दैट इज डेल्टा इज यूनिटी,
इसमें हम किसी भी तरह का करेक्शन फैक्टर, जब हम बर्नौलीज थ्योरम या कोई भी चीज़ आप देखते होंगे तो एक उसमें एनर्जी करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, जहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ करेक्शन करना है, तो वहाँ पे एक अल्फा करके एक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है। इसमें हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, पहले भी हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किए, तो उसको हम यूनिटी लेंगे यानी कि 1 लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद द रफनेस कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी कि रफनेस कोएफिशिएंट जैसे कि मैनिंग्स या चीज़ कांस्टेंट है, उसका डेप्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये आप फॉर्मूला भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। डेप्थ के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं। एरिया इंटू वेलोसिटी, जब आप देखते हो वेलोसिटी निकालने के लिए उसका यूज़ करते हैं हम, है ना, वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे कि मैनिंग्स कांस्टेंट में 1/n r रेज़ टू पावर 2/3 इंटू s रेज़ टू पावर 1/2, फिर चेजिस फार्मूला में q इज इक्वल टू c अंडर रूट आर एस। इसमें डेप्थ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रफनेस कोएफिशिएंट जो होता है चीज़ कांस्टेंट या मैनिंग्स कांस्टेंट, वो डेप्थ से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट अजम्पशन है, द फार्मूला सच एज चेजिस मैनिंग्स which are applicable for uniform flow are also applicable to the gradually varied flow for determining slope of energy line। यानी कि एक एनर्जी लाइन होती है, अभी हम देखेंगे आगे, उसका अगर आपको किसी भी चीज़ की स्लोप निकालना है, तो हम ये जो चेजिस और मैनिंग्स फार्मूले को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चेजिस और मैनिंग्स फार्मूला जो है वो जनरली यूनिफॉर्म फ्लो के लिए होता है, बट वी कैन यूज दैट फार्मूला हेयर ऑल्सो फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, स्लोप ऑफ एनी लाइन इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। पहली चीज़ क्या है, जो चैनल का बेड है वो स्मॉल रहेगा, चैनल प्रिज्मेटिक रहेगा, एक्सेलरेटिंग इफेक्ट नहीं रहेंगे, एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1 रहेगा, रफनेस कोएफिशिएंट का इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ, और उसके बाद चेजिस और मैनिंग्स फार्मूला हम जीवीएफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, तो ये याद रखेंगे एजम्पशंस को भी। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, दैट इज डेरिवेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड। देखिए स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन बहुत लेंदी है, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन बहुत लेंदी है और एग्जाम में आने वाला है नहीं, ठीक है ना। मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझा तो मुझसे पूछिए। लेकिन अभी मैं आपको इसके कुछ टर्म्स बताऊंगा, शॉर्ट में डेरिवेशन को समझा भी देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन इसको एकदम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखना है, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको डिराइव किया गया है और क्या फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उन फॉर्मूले का हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो डेरिवेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है ना। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ये एक डायग्राम है, ये एक डेटम लाइन है और ये चैनल का स्लोप है, यानी जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। ये फ्लो हो रहा है, वाटर की डेप्थ है ये यहाँ से लेके, ये डेप्थ ऑफ, ये चैनल का बेड है, ठीक है ना, ये बेड ऑफ चैनल है, याद रखेंगे चैनल बेड ये है, ठीक है, दिस इज चैनल बेड, ये आपको पता ही होगा चैनल का बेड है ये, ठीक है। अब वाटर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं जो डेप्थ है, ठीक है ना, ये चैनल के बेड से और वाटर की जो डेप्थ है हमेशा हम वाई लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने अज्यूम किया डेप्थ ऑफ फ्लो इज वाई, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो इज वाई। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि v इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो जनरल है, ठीक है, और q जो है वो डिस्चार्ज है, ये भी मान लेते हैं। उसके अलावा एक नई चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं कि जो z है, हाइट ऑफ बॉटम ऑफ चैनल अबाउट डेटम, ये डेटम के ऊपर जो है ना, ये डेटम लाइन एक इमेजिनरी लाइन हमने मार्क की है, उसकी जो डेप्थ है चैनल के बॉटम से, हम उसको मान लेते हैं कि वो z है, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम कि वो z है, ठीक है। चैनल हाइट ऑफ बॉटम ऑफ चैनल अबाउट द डेटम इज z है, ठीक है। उसके बाद एस नॉट, स्लोप ऑफ चैनल बेड, ठीक है ना। एस नॉट मतलब, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो चैनल का बेड है, जो हम हमेशा पढ़ते हैं ना, चैनल का जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसको हम लेंगे, हाँ, ठीक है। सो दिस इज द चैनल बेड, जिसको हम एस नॉट बोलेंगे, ठीक है। ये इंडिकेशन है, देखिए S0 एस नॉट, ये स्लोप ऑफ चैनल है, ठीक है ना, इसको हम मानते हैं स्लोप ऑफ चैनल, नाम याद रखेंगे एस नॉट। उसके बाद हम बोलते हैं कि एस एफ जो है, एस एफ तो हम मान के चलते हैं कि एस एफ जो है स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना, अब याद करो एच जी एल टी एल को, एक हमने चैनल बेड ले लिए,
जो वाटर सरफेस होता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ओपन चैनल फ्लो में, ये होता है HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बराबर। तो Z प्लस वाई इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये टर्म्स याद है आपको। फिर अगर हम उसमें वेलोसिटी ऐड करते थे तो वो हो जाता था TL, एनर्जी लाइन, है ना। याद करो, HGL TL में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो V² प्लस 2G है, जो कि जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर V² बाय 2G की जो डेप्थ है, वो हमारी एनर्जी लाइन है। ठीक है, अब ये एनर्जी लाइन है, इसका जो स्लोप बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको हम मान के चलते हैं दैट इज SF। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। इसको हम हमेशा ऊपर से लेंगे, टॉप से, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से नीचे से तो आ नहीं सकता क्योंकि स्लोपिंग इस डायरेक्शन में, तो इसको हम टॉप से लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो स्लोप है, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। ठीक है, वी विल कॉल इट एज स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ वाटर लेवल। अभी जो वाटर लेवल है ना, इसका क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, बट क्योंकि बहुत लेंथी न्यूमेरिकल है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगी तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन आपको शॉर्ट में पूछ सकता है। तो dy/dx क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। dy/dx है, मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। जो dy/dx है ना, वो इसका स्लोप है। ये जो है ना वाटर लेवल, इसका स्लोप है। ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमारा हो जाएगा dy/dx, स्लोप ऑफ वाटर लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, dy/dx इज स्लोप ऑफ वाटर लेवल, याद रखेंगे। ये जो है दैट इज, इसको मैं इस तरीके से घुमा के इधर ला देता हूँ। ये जो स्लोप है ना, ये है हमारा dy/dx। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ वाटर लेवल है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब क्या होता है, जो भी थ्रू आउट जो लेंथ है, ठीक है ना, चैनल की जो लेंथ है थ्रू आउट, एक सेकेंड देखिए, सिंपल मैं आपको इसको बताऊँ तो डेल एक्स का मतलब होता है, जैसे कि ये बैक वाटर कर्व का एग्जांपल है। तो जो पीछे से जो ये जो डेप्थ डिक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ से डेप्थ जो थी वो यूनिफॉर्म थी, लेकिन यहाँ से कम स्टार्ट ये इंक्रीज होना चालू हुई। तो जहाँ से इंक्रीज होना चालू हुई और बिल्कुल एग्जैक्टली डैम के पीछे या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे ये जो लेंथ रहेगी, इसको हम बोलते हैं बैक वाटर लेंथ, इसको बोलते हैं डेल एक्स। ये कुछ किलोमीटर्स में होती है, जैसा मैं बोला था ना आपको, वेरिएशन जो है किलोमीटर्स में। सो बैक वाटर कर्व जो फॉर्म होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, जो लेंथ है यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद क्या होता है मालूम क्या, इसके बाद ना ये यूनिफॉर्म बन जाता है फ्लो, यानी कि ये इसमें डेप्थ कम ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल फिक्स हो जाती है। लेकिन एक लेंथ के बाद यहाँ तक तो यूनिफॉर्म फ्लो चला, लेकिन एक लेंथ के बाद ये इंक्रीज होना चालू हुआ। जहाँ से इंक्रीज होना चालू हुआ डैम के जस्ट पीछे, उसको बोलते हैं डेल एक्स। ठीक है, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं डेल एक्स। तो यहाँ पे होता है ये डेल एक्स के बराबर, लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व बोलते हैं। तो आपको ये टर्म समझ में आए। अब मैं आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बताता हूँ। सिंपल फॉर्मूले है, इसके डेरिवेशन आते नहीं है एग्जाम में, अब तो कोई चांस ही नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो डेरिवेशन आएगा इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मैं आपको इसके फॉर्मूले बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले देखिए डिराइव फार्मूलाज और उसके इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप याद रखेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ वाटर सरफेस। तो इसको हम किस तरह लेंगे, dy/dx का फॉर्मूला क्या है, S0 माइनस SF डिवाइड बाय 1 माइनस Q² T डिवाइड बाय GAQ। ये इतना बड़ा फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, ठीक है ना। इसमें Q डिस्चार्ज है, T जो है वो चैनल की टॉप विड्थ है। जैसे कि आप ये चैनल ले लो कोई भी, ठीक है ना, जैसे कि रेक्टेंगल चैनल ले लिया आपने, तो जितनी बॉटम विड्थ रहेगी उतनी टॉप विड्थ रहेगी, तो टी इज टॉप विड्थ, GAQ। ठीक है ना, S0 क्या है, चैनल का बेड स्लोप, और SF क्या है, देखिए यहाँ पे एनर्जी लाइन का स्लोप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है dy/dx का। सिमिलरली इससे इजी एक फॉर्मूला किया गया इसको और डिराइव करके, S0 माइनस SF डिवाइड बाय 1 माइनस, आपको ये पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FR², यानी कि फ्राउड नंबर स्क्वायर। फ्राउड नंबर का फॉर्मूला V डिवाइड बाय √GY था, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेकंड वाला। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज डेल एक्स इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाय S0 माइनस SF बार। देखिए E2 मतलब क्या होता है, एनर्जी एट सेक्शन 2, एनर्जी एट सेक्शन 1। कोई भी अगर दो सेक्शन दिया है, जैसे कि इसी एग्जांपल को देखो, मान लेते हैं कि सेक्शन 1,
मान लेते हैं हम कि ये सेक्शन 1 है, ठीक है, ये सेक्शन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम सेक्शन 1 मान लेते हैं और इसको हम सेक्शन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 की एनर्जी, सेक्शन 2 की एनर्जी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वो दिया गया है। तो सेक्शन 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, E2, ठीक है, सेक्शन 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 डिवाइड बाय S0 माइनस SF बार, ठीक है, इस तरीके से इसको लेना है, ठीक है, S0 माइनस SF बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल एक्स, यानी कि लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व हम निकाल सकते। नेक्स्ट टॉपिक इसी के बेस पे। तो ये था कुछ इसके डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बड़े बड़े डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज बैक वाटर कर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैक वाटर कर्व। बैक वाटर कर्व क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बैक वाटर कर्व, कोई भी डैम, कोई भी सेक्शन, कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने देखे थे ग्रेजुअली वेरी फ्लो में, उसके जस्ट पीछे क्या होता है, ऊपर तो यहाँ पे तो लेंथ जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रेजुअली वो डेप्थ कुछ लेंथ तक के डिक्रीज होती जाती है और एक लेंथ आती है कि वो यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है ना, फिर वो डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है, यूनिफॉर्म चलती है। या हम इस डायरेक्शन से अगर देखें तो एक यूनिफॉर्म डेप्थ पे चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद ये डेप्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज होना। अब सेक्शन 1 से वो इंक्रीज होना चालू हुई और सेक्शन 2 तक के वो डेप्थ चली। सो दिस डेप्थ इज y1 और दिस डेप्थ इज y2, ठीक है ना, 1 और 2 में। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से, तो एक तरीके से कर्व बन रहा है, ग्रेजुअली कर्व बन रहा है, जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में हमने देखे, इस तरीके से कर्व बन रहा है। तो इस कर्व को हम बोलते हैं बैक वाटर कर्व, क्योंकि ये बैक साइड में है डैम के, तो इसको बोलते हैं हम बैक वाटर कर्व। इस डायरेक्शन में इस तरीके से इसका प्रोफाइल बनता है, ठीक है। सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की लेंथ को हम बोलते हैं डेल एक्स, लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व, ठीक है। तो ये होता है बैक वाटर, जो हम अभी बार बार इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बैक वाटर कर्व क्या होता है, phenomenon, this phenomenon takes place behind the water retaining structure such as dams etc. स्पिलवे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उसके बैक साइड में ये फिनोमेना होता है, ठीक है। उसके बाद द डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब देखिए फ्लो जो है वो डैम की तरफ जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो जो है वो डैम की तरफ जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या हो रहा है, डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जैसे 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 फ्लो आगे बढ़ रहा है डेप्थ वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे आके इस तरीके से रिटेन हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए द प्रोफाइल ऑब्टेन इज कॉल्ड एज बैक वाटर कर्व। ये जो प्रोफाइल आपको मिलता है बैक वाटर कर्व इस डायरेक्शन में, जैसे हम रिवर्स जा रहे हैं तो डेप्थ कम हो रही है और फॉरवर्ड जा रहे हैं तो डेप्थ इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं हम ड्रॉप डाउन कर्व, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन कर्व, क्योंकि हम बैक साइड से देख ले इसलिए ये ड्रॉप हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन कर्व। नेक्स्ट इज when the depth increases in the direction of flow then the profile obtained is called as drop down curve। जब भी डेप्थ जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो की तरफ जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज होगी, यानी कि डेप्थ जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो की तरफ जाएगी तो इंक्रीज होते रहेगी, है ना, जैसे जैसे फ्लो बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में डेप्थ अगर इंक्रीज हो रही है, द डेप्थ इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो जो प्रोफाइल हमको मिलता है, जो स्लोप का या कर्व का प्रोफाइल मिलता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन कर्व, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्योंकि स्लोप्स के बारे में देखेंगे, कर्व के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे ड्रॉप डाउन कर्व, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा रिवर्स साइड में देखेंगे इसको, है ना, रिवर्स साइड में देख रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। हम इसका अपोजिट साइड से देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है अभी हमने देखे डेल एक्स, ये लेंथ निकालने का, E2 माइनस E1 डिवाइड बाई S0 माइनस SF बार। SF बार को हम इसलिए लिए यहाँ पे SF1 यानी कि एनर्जी एट सेक्शन 1, एन स्लोप है, जो एनर्जी लाइन का स्लोप है सेक्शन 1 पे, प्लस एनर्जी लाइन स्लोप जो सेक्शन 2 पे है उसका एवरेज यानी कि डिवाइड बाई 2, ठीक है। S0 का मतलब चैनल बेड और SF बार मतलब एनर्जी लाइन का स्लोप, E2 का मतलब एनर्जी एट सेक्शन 2 और E1 का मतलब एनर्जी एट सेक्शन 1। इस ये फार्मूले से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ये कुछ किलोमीटर्स में आती है लेंथ, ठीक है। तो ये था बैक वाटर कर्व के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ चैनल्स, किस तरीके से स्लोप्स निकाले जाते हैं चैनल के, वो हम देखेंगे, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे।